તો આપણી પાસે પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન એન્ડ ઇલેક્ટ્રોન છે. ન્યુટ્રલ એટમ તમારી પાસે હોય, for the neutral atom number of proton and number of electrons are same to attain electrical neutrality. This electron has very unique character. It shows both characteristic. આમાં બે characteristic તમને છે એ મળે. એટલે આની અંદર છે આનો જે નેચર છે, નેચર ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન એ કયો આવશે? એક તો નેચર કયો છે? પાર્ટિકલ. સેકન્ડ નેચર શું છે? વેવ. તો ઇલેક્ટ્રોન હેઝ બોથ ટાઈપ ઓફ કેરેક્ટરિસ્ટિક. ન્યુક્લિયસ છે તો આમાં એઝ અ પાર્ટિકલ આવી રીતે ઇવોલ્વ કરતો જ હશે ઇલેક્ટ્રોન, અને વેવ ની જેમ આમ પણ ફરી શકે, આવું પણ થઈ શકે. બે નેચર હોય આની અંદર. સેકન્ડ કઈ વાત કરી હતી આપણે આની અંદર? તો કે આની અંદર ઇલેક્ટ્રોન નું મોશન, એમાં બે ટાઈપ નું મોશન. ફર્સ્ટ વન છે એ કયું આવશે બોલો? ઓર્બિટલ મોશન. અને સેકન્ડ કયું કીધું આપણે? સ્પિન. બે છે. ઓર્બિટલ મોશન તો રેગ્યુલર જે છે એ જ છે, પણ સ્પિન ની અંદર શું કહેશું આપણે? એક સ્પિન છે એ ક્લોકવાઇઝ, અને એકવાર ઇલેક્ટ્રોન રોટેટ્સ ઇટ્સ ઓન એક્સિસ, પોતે જ પોતાની એક્સિસ ની ઉપર રોટેટ થાય, એને શું કહેવાય? સ્પિનિંગ ઇલેક્ટ્રોન. સ્પિનિંગ ઇલેક્ટ્રોન છે એમાં જો તમે આ ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં છે, આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડિરેક્શનમાં. આવું સ્પિનિંગ કોઈ પણ ચાર્જ પાર્ટિકલ આવું રોટેશન કરે એટલે એની અરાઉન્ડ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય. આમાં ચલો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થયું N અને S. આમાં તો ઓપોઝિટ રોટેશન છે તો અહીંયા આગળ S અને N, આ બે વચ્ચે શું થશે? એટ્રેક્શન. એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ને આપણે અપ સ્પિન થી રિપ્રેઝન્ટ કરશું, બીજાને કોનાથી રિપ્રેઝન્ટ કરશું? ડાઉન થી. આની સ્પિન ને આપણે કહીએ +1 મેથેમેટિકલી, આની સ્પિન ને શું કહીએ? -1. આટલા અમુક પોઈન્ટ છે એ આપણે ડિસ્કસ કરેલા છે. અમુક પોઈન્ટ ની આપણે છે એ વાત થયેલી છે. જનરલ ડિસ્કશન ફોર મોડર્ન થિયરી ઓફ ધ એટમ. પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન અને ઇલેક્ટ્રોન, આપણો મેઇન ફોકસ આ છે ઇલેક્ટ્રોન. એના બે નેચર છે, બે ટાઈપની મોશન છે. આટલા પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યા. બીજી આપણે વાત કરીએ આગળ. તો નેક્સ્ટ, ફોર ધ એટમ, ફોર ધ ન્યુટ્રલ એટમ. ન્યુટ્રલ એટમ માટે શું કહેવાય બોલો? when atom is electrically neutral, તો આને આપણે છે એ શું કહેશું? નંબર ઓફ પ્રોટોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણી પાસે સોડિયમ છે, આની માટે Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 11. Z11 તો આની અંદર પ્રોટોન કેટલા થશે? 11. ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા હોય? 11. જેટલા પ્રોટોન છે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલા માટે ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ છે. ઓક્સિજન છે, ચલો Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 છે. આનો શું મીનિંગ? પ્રોટોન કેટલા છે? 8. ઇલેક્ટ્રોન પણ કેટલા આવશે? 8. જેટલા પ્રોટોન એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન. ન્યુટ્રલ ચાર્જ છે એ થઈ જશે, બરાબર? એકબીજાને બેલેન્સ કરી દે છે. તો ન્યુટ્રલ હોય તો આવું. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ન્યુટ્રલ તો ઇટ ઇઝ ટર્મ્ડ એઝ આયન. અને આયન ની અંદર છે એ કઈ આવશે? બે. એક હશે કેટાયન અને સેકન્ડ કયો આવે? એનાયન. કેટાયન ક્યારે ફોર્મ થાય બોલો? પ્રોટોન વધારે હોય, ઇલેક્ટ્રોન ઓછા. આમાં ઇલેક્ટ્રોન વધારે રાખો, પ્રોટોન ઓછા રાખો. પોઝિટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય તો કેટાયન, અને નેગેટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય તો એનાયન. માનો કે આ સોડિયમ જ છે. સોડિયમ છે એમાંથી ચલો એક ઇલેક્ટ્રોન આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. એક ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ થાય તો પ્રોટોન તો થઈ રહેશે 11, પણ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થઈ ગયા? 10. ઇલેક્ટ્રોન તો એક વયો ગયો ને, પ્રોટોન તો ન્યુક્લિયસમાં હોય, ન્યુક્લિયસમાં એમનેમ જ રહેશે. કેટલા પોઝિટિવ ચાર્જ વધે છે? 1. તો આની ઉપર +1 લખો. જ્યારે તમે કેટાયન બનાવો ત્યારે પ્રોટોન વધે, અને it can be formed by the removal of electron. That is, it is known as an oxidation process. આ પ્રોસેસને શું બોલાય? ઓક્સિડેશન. તમે જેટલા ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરશો ને એટલો પોઝિટિવ ચાર્જ ડેવલપ થશે, બરાબર? તમે 2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરો તો +2 ડેવલપ થાય. માનો કે મારી પાસે એલ્યુમિનિયમ છે. if I remove 3 electrons from the neutral aluminum atom, તો આપણને કયો આયન મળે? Al+3. લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ બે પર ચાર્જ કન્ઝર્વ થવો જોઈએ. અહીંયા 0 છે, આ બાજુ પણ 0. એનીથી ઓપોઝિટ. ચલો આપણે ઇલેક્ટ્રોન એડ કરીએ. તો એડિશન ઓફ ધ ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ નોન એઝ રિડક્શન પ્રોસેસ. આમાં કેવી રીતે આવશે? ઓક્સિજન, પ્રોટોન કેટલા છે આમાં? 8.
ઇલેક્ટ્રોન કેટલા આવશે બીજા એક પ્રોટોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 ઇલેક્ટ્રોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 હવે આમાં બે ઇલેક્ટ્રોન એડ કરો તમે જેવા ઇલેક્ટ્રોન એડ કરશો નંબર ઓફ પ્રોટોન તો કેટલા આવશે 8 ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થઈ ગયા 10 તમે જો નેગેટિવ ચાર્જ ઇન્ક્રીઝ થાય છે કેટલા યુનિટ થી ઇન્ક્રીઝ થયો 2 તો આની ઉપર કેટલા આવશે -2 ઇન શોર્ટ તમે ઇલેક્ટ્રોન એડ કરો તો અહીંયા આગળ છે નેગેટિવલી ચાર્જ આયન પ્રોડ્યુસ થાય ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરો તો કેટાયન પ્રોડ્યુસ થાય કેટાયન પ્રોડ્યુસ કરો કે એનાયન પ્રોડ્યુસ કરો કેટલો ચેન્જ આવે ઈ જો ચલો આમાંથી let us remove n number of electrons then we will have m plus n એનાયન માટે આપણે આવું કરીએ x આમાં n ઇલેક્ટ્રોન એડ કરશું તો શું આવશે x - m આવી રીતે આવી જશે જો તો ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ છે આ રિડક્શન પ્રોસેસ છે પણ ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ હોય એની અંદરથી બને એવું આપણે કહીએ છીએ અને એ આ બેના રિસ્પેક્ટમાં નક્કી થશે કેટલો ચાર્જ આવશે ચાર્જ કેટલો પ્રોડ્યુસ થાય બોલો ચાર્જ માટે છે શું કરશું નંબર ઓફ પ્રોટોન માઇનસ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન આટલો ચાર્જ તમે છે એ પ્રોડ્યુસ કરી શકશો બરાબર છે તો આ એક ઇન જનરલ ડિસ્કશન કરી નાઉ હાઉ કેન વી રિપ્રેઝેન્ટ એની કેમિકલ એન્ટિટી मैं क्या कहने जा रहा था कोई बात नहीं हमने वो एनी केमिकल स्पीसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स ऊपर यहाँ पे लिखेंगे ए और नीचे लिखते हैं हम जेड ये जेड क्या है ए क्या है और एक्स क्या है वो हमें यहाँ समझना है तो लेट अस अंडरस्टैंड what is the meaning by this representation we have to learn some of the terminologies related to atom the first one is atomic number एटॉमिक नंबर Z ओके एटॉमिक नंबर Z है एटॉमिक नंबर हमें क्या दिखाता है इट शोज इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी स्पीसीज दैट इज आयन और न्यूट्रल एटम we can also say that it is number of electrons in the neutral species ન્યુટ્રલ એટમ ની અંદર નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન તો આયન્સ માં પણ ચાલે કોઈ પણ ની અંદર ચાલશે તો Z denotes number of proton or number of electron બરાબર છે સેકન્ડ ટર્મિનોલોજી શું આવશે માસ નંબર ને a થી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ માસ નંબર આપણને શું ડિનોટ કરે છે નંબર ઓફ પ્રોટોન પ્લસ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन આવી રીતે પણ લખશું નંબર ઓફ પ્રોટોન એટલે Z એટોમિક નંબર પ્લસ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન એટલે n0 અને માસ નંબર આપણે આવું કેમ નામ આપેલું છે માસ નંબર C ન્યુક્લિયસ ની અંદર છે એ શું છે પ્રોટોન છે અને બહાર બધે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે ઇલેક્ટ્રોન્સ ને પણ કંઈક પોતાનું વેઇટ હોય પ્રોટોન્સ ને પણ વેઇટ હોય mass of the electron કેટલા છે mass of electron કોઈને આઈડિયા હોય તો 9.109 into 10 raised to minus 31 kg ટોટલ અહીંયા આગળ છે તમે જોવો ને તો 31 0 આવશે અને પછી આવશે 9109 કેટલા બધા તમે વિચાર કરી શકો અહીંયા આગળ આ બહુ જ ઓછું માસ કહેવાય બરાબર નિગ્લિજિબલ માસ છે આના રિસ્પેક્ટમાં આપણે છે એ પ્રોટોન નું માસ જોઈએ માસ ઓફ પ્રોટોન तो mass of proton છે 1.672 into 10 raised to minus 27 કિલોગ્રામ આ બેનો તમે રેશિયો લો તો તમને એ ખબર પડશે કે ઇલેક્ટ્રોન કરતા પ્રોટોન 1836 times heavier છે બરાબર પ્રોટોન is very heavier than electron ન્યુટ્રોન નું માસ શું છે mass of the neutron no need to remember this data આ મારે તમને ખાલી માસ નંબર એક્સપ્લેન કરવું છે એટલે કહું છું 1.675 into 10 raised to minus 27 કિલોગ્રામ તો આ પણ ઓલમોસ્ટ આ બેના માસ સેમ જેવા જ છે તો એક કોઈ આપણે let us take the entire atom in which electrons are there and some of number of protons and neutrons are also there so the mass of the atom is due to proton and neutron only
વી કેન નિગ્લેક્ટ ધ માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન. ઇલેક્ટ્રોનના માસને તમે નિગ્લેક્ટ કરી દો તો આખા જે પણ કઈ એટમનું માસ છે એ કોને લીધે થઈને હોય? બરાબર છે, પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન. પ્રોટોન એન્ડ ન્યુટ્રોન કન્ટ્રીબ્યુટ્સ ઇન માસ. જેટલા નંબર ઓફ પ્રોટોન વધારે એટલું માસ ઇન્ક્રીઝ વધારે થાય. ન્યુટ્રોન વધારે, માસ વધારે. તો આપણે અહીંયા આગળ એવું કહેશું પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોનના નંબર વધારે તો માસ વધારે. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયા કહીએ છીએ માસ નંબર. ઓકે, માસ નંબર ઇઝ નોટ ધ એકચ્યુઅલી માસ, પણ જેટલા પ્રોટોન્સ વધારે છે એટલું માસ વધારે છે. ન્યુટ્રોન્સ વધારે છે તો માસ વધારે છે. એટલા માટે આપણે એને શું કહેશું? માસ નંબર. માસ નંબર જે છે એમાં નંબર ઓફ પ્રોટોન પ્લસ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન. અને ઇલેક્ટ્રોન તો એટલા માટે છે કારણ કે એને ઇલેક્ટ્રિકલી ન્યુટ્રલ કરીને રાખે છે. બરાબર. એકવાર એક ટીચર હતા અને આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ ન્યુટ્રલ ની વાત આવી ને એટલે મને એવું યાદ આવ્યું. તો આ જે ટીચર હતા એ નવા નવા જોબ ઉપર પ્રેઝન્ટ થયા. બરાબર, નવા નવા જોબ ઉપર હજી લાગ્યા હતા અને એક બહુ વિલેજ ટાઈપનું સાવ દૂરનું એક પ્લેસ હતું, ત્યાં આવ્યા અને બધા બહુ દેશી છોકરાઓ હતા અને એમણે ભણાવ્યું ફિઝિક્સ. અને ફિઝિક્સ ની અંદર તો છે ચાર્જ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક ચેપ્ટર આવે છે 12th ની અંદર, તમને ખ્યાલ હોય તો. આ ટીચરે છે એ એક્સપ્લેન કરવાનું શરૂ કર્યું, મસ્ત ભણાવ્યું ઇલેક્ટ્રિસિટી. અને પછી બધાને છે એ પૂછતા હતા વન બાય વન કે ભાઈ તમે બોલો શું ભણાવ્યું આજે એમ. એટલે એને એક મન્યુ હતો, એને ઉભો કર્યો કે બોલ ઉભો થા મન્યા એમ. આજે મેં તને છે એ શું ભણાવ્યું? એટલે એને કીધું ઇલેક્ટ્રિસિટી, નોટ ઇલેક્ટ્રિસિટી, ઇલેક્ટ્રોટીટી. આનો પિસ્ટન છટકી ગયો. કે આવું સરસ મેં ભણાવ્યું ને આ ઇલેક્ટ્રિસિટી બોલે છે એમ. તારી ભૂલ નથી, આ તારા બાપાની ભૂલ છે કે તારા બાપાને લેતા આવજે કાલે. ઘરે જઈને આને વાત કરી કે બાપા એ કે સ્કૂલેથી બોલાવે છે એમ. ગામમાં પણ બધે વાતો થવા માંડી કે સ્કૂલે બોલાવ્યા છે એમ. તો બીજે દિવસે એના ફાધર છે એ સ્કૂલે આવ્યા અને ટીચરને મળ્યા. એટલે એને કીધું સીધું, આ તમારો છોકરો છે ને, હું ભણાવું છું ઇલેક્ટ્રિસિટી અને બોલે છે ઇલેક્ટ્રિસિટી એમ. તો એના ફાધર શું કે, પણ કે સાહેબ તમે આ છોકરો જોવો ને, નાનો છે ને, કેપેસિટી તો જોવો. આ લે લે, હવે બાપા કેપેસિટી બોલે તો છોકરો ઇલેક્ટ્રિસિટી તો બોલે જ ને. એટલે આને પાછું લાગી ગયું, તમારો ફોલ્ટ નથી, આ તમારા બાપાનો ફોલ્ટ છે, દાદાને બોલાવીને લાવજો કાલે. આખા ગામમાં બધે વાત પોગી ગઈ કે છોકરો એના બાપા ત્રણેયને એક હારે ત્રણને બોલાવ્યા છે. સવારમાં સ્કૂલના ગ્રાઉન્ડની અંદર બધા જ છે આવી ગયા. બરાબર છે. અને આખા ગામના ટોળે ટોળા જોવા આવ્યા કે આજ તો શું થશે એમ. એટલે બધા જ આવીને ઉભા રહી ગયા સ્કૂલની અંદર. બરાબર, વચ્ચે મેદાનમાં. માસ્તર છે એ સાયકલ લાવ્યા, સાયકલને પાર્ક કરી અને તરત આવ્યા. અને દાદા લાકડીના ટેકે ચાલતા ચાલતા કે બોલો માસ્તર શું છે? એટલે એને કીધું કે આ તમારો છોકરો ઈ ઇલેક્ટ્રિસિટી કે છે, એના બાપાને કહીએ તો ઈ કેપેસિટી કે છે, કાંક સમજવું તો જોવે ને એમ. એટલે એને કીધું પણ માસ્તર તમે મને પેલા કીધું હોત તો સીધું આ આટલી બધી પબ્લિસિટી કાં કરી દીધી? આ તો પબ્લિસિટી કે છે. અઘરું પડી ગયું, માસ્તરનો પિસ્ટન છટકી ગયો. બધું મૂકીને સીધા ગયા પ્રિન્સિપલ પાસે, હું રાજીનામું લખું છું, મારે અહીંયા નથી ભણાવવું એમ. એટલે પ્રિન્સિપલ સરે એને બેસાડ્યા ચેર ઉપર, ખભા ઉપર હાથ બાથ મૂક્યો કે બોલો શું પ્રોબ્લેમ છે? કે આ છે ઇલેક્ટ્રિસિટી કે છે, આને કહીએ તો કેપેસિટી, ને આને છે કહીએ તો પબ્લિસિટી કે છે. પ્રિન્સિપલ સાહેબે એને છે આમ નિરાતે બે હાથ મૂકીને ખભા ઉપર હરખી રીતે કીધું, તમે એટલી બધી ઉતાવળ ન કરો માસ્તર, તમે નવા છો, છોકરો હજી નાનો છે, છોકરો મોટો થઈને યુનિવર્સિટીમાં જશે ને એટલે બધું શીખી જાય. પણ આટા મૂકી દીધા, બેહોશ થઈ ગયો. એટલે અહીંયા આગળ આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીની વાત કરીએ છીએ. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિસિટી અહીંયા આગળ પ્રોડ્યુસ થાય એટલી ન્યુટ્રલ થઈ જાય પ્રોટોનથી. તો માસ નંબર એ છે અહીંયા આગળ z ઇઝ ઇક્વલ, અહીંયા a ઇઝ ઇક્વલ ટુ z પ્લસ m. આને માસ નંબર કહેવાય. થર્ડ અહીંયા આગળ છે એ શું આવી શકે? ન્યુટ્રોન નંબર. અચ્છા, ન્યુટ્રોન નંબરને આપણે છે એ કઈ રીતે લખીએ છીએ? ન્યુટ્રોન નંબરને સબ્જેક્ટ કરી દો, n0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ z. ફોર્મ્યુલા તો છે એ સેમ જ છે. બરાબર, એ જ યુઝ કરવાના થશે તમારે.
ચલો આવી કોઈક રિપ્રેઝન્ટેશન આપેલું છે 11 Na23 અને +1 આમાંથી કયા આઈડિયા આપણને મળશે બોલો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ Z કેટલા છે 11 Z11 તો નંબર ઓફ પ્રોટોન 11 Z11 પ્રોટોન 11 માસ નંબર કેટલા છે 23 અચ્છા માસ નંબર 23 હોય અને પ્રોટોન 11 હોય તો ન્યુટ્રોન ના નંબર આપણને મળી જશે ન્યુટ્રોન કેટલા થઈ ગયા 12 પ્રોટોન 11 છે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે કેટલો ચાર્જ +1 એક ઇલેક્ટ્રોન લેસ કરી દો ઇલેક્ટ્રોન કેટલા આવશે 10 તો બધા જ આઈડિયા આપણને આવી રિપ્રેઝન્ટેશન થી મળી જાય છે તો આની વાત આપણે છે એ થઈ બરાબર આ બધા પોઈન્ટ આપણે કીધેલા છે નેક્સ્ટ આપણે હવે જોઈએ ચલો then we have learned about isotopes. Isotopes is the relationship that can be established between the same element having different masses. એક જ એલિમેન્ટ વચ્ચેનો એવો રિલેશન કે જેના માસ અલગ અલગ હોય એક છે એ સ્લિમ હોય બરાબર છે અને બીજો છે એ એકદમ હટ્ટો હોય એવાના આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ આમાં છે એ સેમ શું રહેવું જોઈએ એલિમેન્ટ સેમ છે ધેટ ઇઝ Z નંબર ઓફ પ્રોટોન્સ આર સેમ તો ડિફરન્સ ક્યાં આવશે ડિફરન્સ આવશે માસમાં or we can say number of neutron માં ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે અહીં આગળ છે 6 કાર્બન 12 6 કાર્બન 14 ચલો કમ્પેર કરો લ્યો આ ભાઈને કમ્પેર ધીસ ટુ કેમ આવશે આમાં કમ્પેર કરીએ તો Z શું છે 6 આમાં પણ 6 A 12 અહીંયા A કેટલો થયો 14 નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન ચેક કરો A - Z ન્યુટ્રોન કેટલા છે 6 ન્યુટ્રોન કેટલા થયા 8 તો આને આપણે શું કહીએ આઇસોટોપ્સ these two are isotopes of each other આપણે we cannot say કે 6 carbon 12 is isotope I have to give the reference also કે કોનો આઇસોટોપ છે બરાબર કોનો આઇસોટોપ છે એ પણ આપણે કેવું પડશે હાઇડ્રોજન માટે પણ આપણે આવું કહી શકીએ ફોર હાઇડ્રોજન એટમ આપણી પાસે અલગ અલગ છે 1H1 છે 1H2 1H3 see these all are isotopes iso that means same and tops means position they lies in the periodic table અને periodic table માં માનો કે અહીંયા કાર્બન નું જે પણ કંઈ તમે કાર્બન લખો છો ત્યાં જ આ બે કાર્બન ને લખવાના 6 કાર્બન 12 6 કાર્બન 14 એનું જે પ્લેસ છે ને એમાં બધાને એક સાથે મૂકવાના બરાબર they should remain together એટલા માટે એને આઇસોટોપ એવું કહીએ છીએ પિરિયોડિક ટેબલમાં they occupy the same position હાઇડ્રોજન માટે 1H1 1H2 1H3 તમે જો આ બધામાં ન્યુટ્રોન અથવા તો A અલગ અલગ છે Z તો બધાના સેમ જ છે Z માટે 1 અહીંયા 1 અને અહીંયા 1 A આની માટે છે એ કેટલા છે 1 આમાં 2 અહીંયા 3 ચલો અહીંયા આગળ છે એ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન ચેક કરો 0 ન્યુટ્રોન 1 ન્યુટ્રોન 2 ન્યુટ્રોન 1 ન્યુટ્રોન વાળી જે સ્પીસીસ છે એને કહેવાય ડ્યુટેરિયમ અને D થી પણ રિપ્રેઝન્ટ કરાય અને T થી પણ રિપ્રેઝન્ટ કરાય ટ્રિટિયમ આને નોર્મલ હાઇડ્રોજન જ બોલાય છે ઓર સમટાઇમ્સ પ્રોટિયમ એવું પણ બોલે છે પ્રોટિયમ ડ્યુટેરિયમ ટ્રિટિયમ તો હાઇડ્રોજન છે અને આપણને કેટલા આઇસોટોપ્સ મળે છે 3 ઘણા બધા આઇસોટોપ્સ હોય છે યુરેનિયમમાં પણ એવું જ છે ને 92 યુરેનિયમ 235 અને એક બીજું કયું મળે છે 92 યુરેનિયમ 238 આ 235 કરતા 238 છે ને એ બેસ્ટ છે આ 238 હોય ને એનું ફ્યુલ વધારે સારું કહેવાય પછી જો તમે ચલો તમને ખ્યાલ છે કે ઇન ડેફિશિયન્સી ઓફ આયોડિન ગોઈટર ડિઝીઝ થાય તો ગોઈટર ની અંદર છે એ આપણને બે ટાઈપના આયોડિન છે એક 53 અને 125 એક આયોડિન હોય અને બીજું એક આયોડિન છે 127 આ જે 125 વાળો આયોડિન છે ને એ મેડિસિનમાં યુઝ થાય આ તમે ગમે એટલો આયોડિન છે એ તમે માની લો કે ઇન્ટેક કરો કોઈ ઇફેક્ટ ન થાય એટલે તમે સીધા ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધીસ આઇસોટોપ્સ છે આ આયોડિન જ છે પણ આનો કોઈ મેડિકલ યુસેજ નથી બરાબર છે એટલે આપણને આઇસોટોપ્સ કેમ છે એનો આઈડિયા આવવો જોઈએ
આ હાઇડ્રોજન છે આમાંથી શું બની શકે બોલો H2O આમાંથી શું બને D2O આ H2O ને આપણે ડ્રિંક કરી શકીએ D2O નો પીવાય એને હેવી વોટર કહેવાય હેવી વોટર છે એની બોડી ઉપર એડવર્સ ઇફેક્ટ થાય ક્યારેય તમે આ ન લઈ શકો ઓકે તો આઇસોટોપ્સ છે એની બધી ઘણી બધી ઇમ્પોર્ટન્સ છે મેડિકલ ફિલ્ડમાં એમાં તો બહુ જ છે તો આઇસોટોપ ની વાત કરી સેકન્ડ આપણે છે એ જોઈએ સેકન્ડ આઇસોબાર આઇસોબાર આ એવા છે કે જેની અંદર વેઇટ સેમ હોય અને ડિફરન્સ એલિમેન્ટ હોય બરાબર ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ ઝેડ ડિફરન્ટ ન્યુટ્રોન તો ડિફરન્ટ થશે જ થશે two different elements having same mass બરાબર two different elements having same mass number are termed as isobar અને શું કહેશું isobar સી અહીંયા આગળ આપણે આવી રીતે લખીએ ચલો 6 કાર્બન 14 અને એક મારી પાસે છે 7 નાઇટ્રોજન 14 એલિમેન્ટ જ અલગ અલગ છે જો પહેલામાં એલિમેન્ટ તો સેમ હતા આની અંદર એલિમેન્ટ જ અલગ થઈ ગયા ચલો અહીંયા આગળ આપણે લઈએ ઝેડ ઝેડ કેટલા છે આમાં 6 આમાં ઝેડ 7 માસ જો માસ નંબર 14 આમાં માસ નંબર 14 ન્યુટ્રોન પણ અલગ થશે ને આમાં ન્યુટ્રોન કેટલા છે 8 આમાં કેટલા છે 7 તો two different elements having same mass number અને શું કહેશું આઇસોબાર આઇસોબાર પણ આપણને ઘણા બધા મળે છે આ તો એલિમેન્ટ જ અલગ અલગ છે પહેલામાં એલિમેન્ટ સેમ હતા વેઇટ અલગ અલગ હતા આની અંદર છે એ શું થશે વેઇટ સેમ છે ને એલિમેન્ટ્સ આર ડિફરન્ટ અને આઇસોબાર કહેવાય આ પણ આપણને ઘણા બધા મળે છે ચલો માનો કે આપણે લખીએ 18 આર્ગોન 40 અહીંયા આગળ છે એ લઈ લઈએ કેલ્શિયમ 20 કેલ્શિયમ અને અહીંયા 40 સી ડિફરન્ટ એલિમેન્ટ્સ એક આર્ગોન ગેસ છે કેલ્શિયમ મેટલ છે આ ગેસ આર્ગોન ઇનર્ટ ગેસ કેલ્શિયમ મેટલ માસ નંબર બેના જો સેમ છે એલિમેન્ટ્સ તો કે અલગ અલગ છે આવાને આપણે શું કહીએ છીએ આઇસોબાર આઇસોબાર આને છે આપણે કહીએ છીએ એની પછી નેક્સ્ટ લઈએ થર્ડ નંબર ની અંદર શું આપણે જોયા હતા થર્ડ નંબર ની અંદર આઇસોટોન અચ્છા આઇસોટોન્સ જે છે that means they have same number of neutrons આની અંદર સેમ થવું જોઈએ ન્યુટ્રોન નંબર ડિફરન્સ તો બેમાં હશે ડિફરન્સ ની અંદર એ પણ ડિફરન્ટ હશે ઝેડ પણ ડિફરન્ટ હશે ન્યુટ્રોન નંબર સેમ ક્યારે થાય બોલો a માઇનસ ઝેડ સેમ થાય તો આપણે n0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખીએ છીએ a માઇનસ ઝેડ તો a અને z નો ડિફરન્સ સેમ થાય તો એને આઇસોટોન્સ કહેવાય ફોર એક્ઝામ્પલ નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન સેમ થવા જોઈએ ચલો 6 કાર્બન 13 7 નાઇટ્રોજન 14 આમાં ચેક કરીએ a 13 અહીંયા 14 z 6 અહીંયા 7 a માઇનસ z કરો એટલે નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન મળશે 13 માઇનસ 6 કરો 7 નંબર ઓફ ન્યુટ્રોન આમાં 14 માઇનસ 7 7 ન્યુટ્રોન તો ન્યુટ્રોન ના નંબર સેમ છે ન્યુટ્રોન ના નંબર સેમ હોય તો શું કહેવાય આઇસોટોન્સ બહુ સિમ્પલ છે તમે લોકો તરત જ છે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો ચલો અહીંયા x નીચે z અને a z સેમ હોય z સેમ that means element are same element હોય તો they are lying in the same place in the periodic table તો z સેમ છે તો આને શું કહેશું આઇસોટોપ ઓકે વેઇટ સેમ છે તો આને શું કહેશું માસ નંબર સેમ છે તો આઇસોબાર હે હિન્દીમાં બોલો છો શેમાં બોલું હિન્દીમાં લેક્ચર ઇંગ્લિશ અચ્છા हिंदी ની અંદર ओके ओके तो if we have same number of z तो we can place इसको हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल तो उसे हम क्या कहेंगे आइसोटोप अगर इसका वेट सेम होगा तो हम इसे क्या कहेंगे आइसोबार और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर जो सेम होगा तो उसको हम क्या कहेंगे न्यूट्रॉन का नंबर सेम है तो आइसोटोन ओके और जो सेम ये आपको आइडिया आ जाना चाहिए आइसोटोन के अंदर एलिमेंट्स भी अलग अलग होंगे एलिमेंट्स तो यहाँ देखो अलग है
उसके मास नंबर भी सेम नहीं है और एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है। आगे की स्लाइड देखो, इसमें क्या था, ये है आइसोबार, एलिमेंट्स तो अलग अलग है पर उसके मास नंबर सेम है। और इसके आगे की स्लाइड देखो तो एलिमेंट सेम है और उसका वेट अलग अलग है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बराबर है। इसके बाद हम एक और टर्मिनोलॉजी लर्न करते हैं जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फोर्थ नंबर की टर्मिनोलॉजी है, उसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये किस दो स्पीसीज के बीच में रिलेशन है होता है, तो ये मॉलिक्यूल के बीच में भी होगा, एटम्स के बीच में भी होता है और आयंस के बीच में भी हो सकता है, कोई भी चलेगा। any species having same number of electron it is known as isoelectronic। बस इसमें सेम क्या रहना चाहिए, इसके अंदर सेम रहना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम तो उसे हम कहेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जांपल आई हैव नियॉन गैस and I am taking sodium, by removal of 1 mole of electron we have Na+। नियॉन के अंदर में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस के अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH4 मीथेन गैस, मीथेन में कार्बन के पास कितने 6, 4 हाइड्रोजन के और 4 लगा दो, कितने हो गए 10। तो इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। H2O भी आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे आप NH2 माइनस भी रख सकते हो, इन सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इफ ऑल स्पीसीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आपको बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, चलो मेरे पास यहाँ पे निकल है NiCO4 ऐसा है, इसे बोलते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकल। ये जो है ना CO, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, निकल के साइड कंबाइन होकर ये ऐसा बनाता है NiCO4। ओके, NiCO4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोबाल्ट रखने जा रहा हूँ, NiCO4 में निकल को रिप्लेस करके कोबाल्ट रखने जा रहा हूँ। कोबाल्ट लिखने में ध्यान रखना, ये कैपिटल C और स्मॉल O ऐसे लिखोगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और -1 लगा देते हैं, ये CO तो कॉमन है, इन दोनों में CO तो कॉमन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है निकल के 28 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट में कितने होते हैं, कोबाल्ट के अंदर 27 होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से गेन किया हुआ है, तो 27 + 1 कितने हो गए 28। दोनों के अंदर अब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो इन दोनों को भी हम क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ओके, इन दोनों को भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपको प्रोटॉन वगैरह सब नहीं देखना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस करना है। और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ओके, इसे हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स किसे कहते हैं। पहली बात तो ये कि आइसोस्टर है वो मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलता है, मॉलिक्यूल के अंदर। और ये मॉलिक्यूल के अंदर अब होना क्या चाहिए, वी मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर सेम क्या होने वाला है, तो इसके अंदर सेम होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम्स भी सेम होने चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल देखो, इससे आइडिया आ जाएगा। ये CO2 है और ये डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। CO2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, CO2 कार्बन के तो 6, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8, और ऐसे कितने ऑक्सीजन है 2, इन दोनों को मिला दो ये 22 जैसा आ जाएगा।
तो इसके अंदर 22 इलेक्ट्रॉन्स है। N2O के अंदर देख लो, अब N2O के अंदर क्या मिलेगा? चलो ये दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इंटू 2, ऑक्सीजन के कितने? 8, ये 14 प्लस 8, इसके भी कितने आ गए? 22 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स, इसके अंदर कितने एटम रहेंगे? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, 3। यहाँ पे ये दो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, फिर से 3। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होना ही होना है, साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होने चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे? आइसोस्टर्स। आई कैन से दैट ऑल आइसोस्टर्स आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। All isosters having same number of electron, that's why they are always isoelectronics. पर मैं ये नहीं कह सकता कि all isoelectronics are isosters. No, never. It is not possible. क्योंकि देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ F माइनस, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2O। ये एक सिंगल स्पीसीज है और इसके अंदर तो 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, तो ये नहीं होने वाला। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, they are isoelectronic of course, but they are not isosters। बराबर? ये आइसोस्टर्स नहीं कहलाएंगे। आइसोस्टर्स कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए। अभी एक और एग्जांपल देके बताता हूं। देखो ये है MgO और दूसरा है सोडियम फ्लोराइड। कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके अंदर? ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन, 12 और 8 20 हो गए। यहाँ पे 11 और 9, इसके भी 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इलेक्ट्रॉन के तो दोनों के अंदर सेम है। अब देखो नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स, इसके अंदर कितने एटम्स है? एक Mg का और एक ऑक्सीजन का, टोटल 2। यहाँ पे एक सोडियम और एक फ्लोरीन, 2। तो इन दोनों को मैं आइसोस्टर्स बोल सकता हूँ। Isosters are always isoelectronics, but all isoelectronics are not isosters. Vice versa true नहीं है। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट 6 नंबर की टर्मिनोलॉजी है। 6 नंबर की टर्मिनोलॉजी जो है वो है आइसो डायाफर्स। आइसोडायाफर्स। ये आइसोडायाफर्स क्या होता है? ये ऐसी स्पीसी है जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम होता है। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो तो उसे हम आइसोडायाफर्स बोलते हैं। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? देखो ये न्यूट्रॉन नंबर का क्या फॉर्मूला रहेगा? N0 इज इक्वल टू A माइनस Z। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख दूं, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, दैट मींस Z। अब ये N0 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो, तो क्या मिलेगा? A माइनस Z और एक माइनस Z, दैट इज A माइनस 2Z। ऐसा होगा? तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल दूं कि इसमें सेम क्या रहना चाहिए? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं A माइनस 2 इंटू Z, ये भी तो लिख सकता हूं मैं। तो जिस किसी स्पीसीज के, दो स्पीसीज के अंदर ये सेम हो जाए उसे हम बोलेंगे आइसोडायाफर्स। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास है ट्रिटियम 1H3 और एक मेरे पास है 5 बोरॉन 11। नाउ लेट्स कंपेयर द ऑल पैरामीटर। चलो बताओ इसके अंदर Z क्या रहेगा? एक A क्या रहता है? पहला तो A रहेगा 3 और यहाँ पे 11। Z क्या है इसका? 1, इसका Z 5। मुझे क्या देखना है? A माइनस 2Z। तो A माइनस 2Z तुम देखो तो वो तुम्हें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस। A3 है, Z डबल कर दो, 1 इंटू 2, 2, 3 में से 2 तो कितने हुए? 1। यहाँ पे ये डबल कर दो, 10, 5 इंटू 2 तो 10, 11 में से 10 गया तो कितना मिला? 1। तो देखो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस सेम है, तो इन दोनों को हम बोल देंगे आइसोडायाफर्स। अभी एक और एग्जांपल ले रहा हूं।
चलो ये 15 है और ये 31 है, यहाँ पे ये 31 और ये 15, क्या करना है बोलो? ये 15 का तो डबल कर दो, 30 आ जाएगा, और 31 में से उसे सब्सट्रैक्ट कर दो, कितना मिला? 1। तो ये भी तो इसी श्रृंखला में आता है, बराबर है? तो ये इसी फैमिली में बिलोंग कर सकता है, तो इन सभी को हम बोलते हैं आइसोडायाफर्स। तो हमने टोटल 6 टाइप की अलग अलग टर्मिनोलॉजी लर्न की है। सेम एटॉमिक नंबर Z हो और डिफरेंट मास हो, सभी टाइप की टर्मिनोलॉजी हमने लर्न की है। आइसोटॉप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोस्टर्स है, और ये वाला आइसोडायाफर्स। तो ये आपको अब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बराबर है? नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमें तो मेन क्या है कि हमें टारगेट करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। मेरा ऐसा ही प्रयत्न रहेगा कि आप सब इजीएस्ट वे से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन को पहचान पाओ, और वो नहीं आएगा तो आगे केमिस्ट्री भी नहीं आएगा। अलग अलग सेंटर है, इसने चलवा दिया है, हम थोड़े से लोगों को बाकी है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन पहले आपको करवाता हूँ, एंड दिस इज वेरी फाउंडेशन। अभी मैंने आपका कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हुआ है, मैं पहले फाउंडेशन पहला पूरा कराऊंगा, उसके बाद में ही हम कोई एक चैप्टर को सीखेंगे। तो उसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन की बहुत आवश्यकता रहेगी। इट इज वेरी एसेंशियल, so we have to learn electronic configuration, how to write, how to identify a particular element. Okay, तो उसे सीखने के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर ऑफ एटम आना चाहिए। मैं यहाँ पे तुम्हें वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं सिखाने वाला हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो वो तुम डिटेल में स्टडी करोगे ही, पर मैं जो है यहाँ पे तुम्हें बहुत बेसिक लेवल पे वो लर्न करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें अलग अलग आइडियाज बनाने पड़ेंगे। शेल है, सब शेल है, ऑर्बिटल है, वो सब हमें सीखना पड़ेगा। तो एक के बाद एक हम वो सीखते जाएंगे। क्वांटम नंबर्स भी हमें लर्न करने हैं। उसके बाद आपको 3 रूल सीखने हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन आ जाएगी। तो पहले हम लर्न करने वाले हैं ऑर्बिट। रिमेंबर, कीप इन माइंड दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। whatever terminologies are required I will explain। बराबर, जितना जरूरी है वो मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ, इंक्लूडिंग क्वांटम नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने वो तो जान लिया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बाहर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है, वो सब तो हमने कर लिया। पर अब इसको, इसका जो मॉडल है, वो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन तो कहीं ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह सकते हैं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इफ वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वेयर दिस इलेक्ट्रॉन लिव्स, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते होंगे और कितने कितने रहते होंगे, वो सब हमें देखना है और वो सब हमें पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट, ये ऑर्बिट क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है। इलेक्ट्रॉन का 2 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, बराबर है? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ हो गया, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ हो गया जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। ये रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सेंटर में है, इसके आसपास, बराबर है? ये हो गया। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? इसे ओल्ड टर्मिनोलॉजी में तो इसे हम डिनोट करते थे के एल ऐसे, यहाँ पे एन है। Nowadays it is also represented in terms of n value, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, ऐसे। इसे जनरली शेल भी कहा जाता है, शेल। ये शेल जो है ना, वो शेल बोलने से, ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, इससे क्लियर होता है कि एटम इज 3 डायमेंशनल। ये जो फुटबॉल का शेप होता है ना, कवच, कैसा होता है? n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, ऐसे। ओके, ऑर्बिट जब हम बोलते हैं ऑर्बिट,
तो इसे हम के एल एम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और शेल को हम एन वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिट को हम क्या लिखेंगे, के एल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये सर्कुलर पाथ में उसकी पार्टिकल नेचर हम कंसीडर करते हैं, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को हम कंसीडर करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एन एंड सो ऑन। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में इसको हम क्या बोलते हैं, शेल। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेयर, ओके, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, इसे हम एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं ना। क्यों हमने एनर्जी लेवल इसे बोला, देखो ये तुम्हें क्या दिखा क्या रहा है, इसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। ये क्या है आपको धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे। अब मैंने यहाँ एनर्जी लेवल भी लिखा हुआ है, वो एनर्जी लेवल क्यों लिखा हुआ है ये देखो। सपोज करो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये सब एनर्जी लेयर्स है। ऐसे कहाँ तक रहते हैं, इनफाइनाइट तक। ये के एन इनफाइनाइट, यहाँ पर भी ये इनफाइनाइट। चलो ये n इज इक्वल टू 1 और k है, l है, m है। यहाँ पे लिखो n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस एकदम क्लोज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो और भी न्यूक्लियस से दूर गया। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। बराबर है, इलेक्ट्रॉन जो डिस्टिंक्ट होता जा रहा है वो अब न्यूक्लियस से अट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाएगा। कैसे, आप सोचो कि तुम्हारे पास ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज है। प्लस में से फील्ड लाइंस निकलती है और माइनस में दाखिल होती है, तो यहाँ पे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, इफ आई पुट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेयर टू सेकंड एनर्जी लेयर, you have to you have to what we can say, apply the, you have to supply the energy to minimize this force of attraction। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा। तो ये दूर ले जाने के लिए तुम्हें इसके अंदर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कंपैरिजन में n इज इक्वल टू 2 के इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी। ओके, और दूर ले जाना है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। प्लस माइनस को आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, बराबर है। तो यू हैव टू अप्लाई द एनर्जी, उसे कुछ एटम के अंदर एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ रही है, आर इंक्रीज होगा, बराबर है। ये हम कह सकते हैं कि एन इंक्रीज होगा तो रेडियस ऑफ द एटम इंक्रीजेस, और वी कैन से द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये दूसरा क्या दिखाता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये आर इंक्रीज होगा, और आर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो एन इंक्रीज आर इंक्रीज होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है वो बहुत स्टेबल इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे वो अनस्टेबल होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे वो स्टेबल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैव मोर स्टेबिलिटी ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो यहाँ पे न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो एकदम खींचेगा, और बहुत दूर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन है इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर, KLM से रिप्रेजेंट करते हैं। शेल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एन इंक्रीज होगा तो आर इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। ओके, ये हमने सीखा, ये सब बात हुई ऑर्बिट की। मुझे एक और चीज आपको सिखानी है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स जो है वो 3 डायमेंशनल शेप है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का स्टडी होता है। अभी आप, मुझे पता तो नहीं आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम सीखा हुआ है या नहीं सीखा हुआ है, या फिर चल रहा है, मुझे मुझे पता नहीं है।
पर आप वो डिटेल में सीख जाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें हम वेव नेचर ले रहे हैं, ओके, और यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर की डिस्कशन कर रहे हैं। तो मुझे बात करनी है ऑर्बिटल्स की, बराबर है। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सब शेल। ये सब शेल क्या होता है, देखो, ये न्यूक्लियस, इसके अराउंड में जो ये सर्कुलर पाथ है उसको तो हम शेल बोल रहे हैं। अब ये एटम को मैं एक ओरिजिन के ऊपर सेट कर रहा हूँ, बराबर है। ओरिजिन के ऊपर सेट किया तो हमें यहाँ पे ये जेड मिला, ये एक्स है और ये वाई है, ये वाई। नाउ व्हाट हैपन्स के समटाइम्स ऐसा होता कि जब हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये पूरा शेल छोड़कर ये इतने एरिया में ही मिलता है, यहाँ पे इतने में ही। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस जो ये 3D एरिया है उसे हम बोलेंगे सबशेल। सबशेल जो है वो एनर्जी लेवल के अंदर का ही एक हिस्सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहना पसंद करता है। अभी मानो कि आप थिएटर में जा रहे हो, बराबर है, तो थिएटर के अंदर तो कैसा होगा कि ऐसे आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, देखो। ये ऐसे स्टेप्स रहते हैं, आपने कभी देखा होगा, तो ऐसे स्टेप्स होते हैं। तो आप यहाँ पे भी होगे, आप यहाँ पे भी आपकी चेयर होगी, यहाँ पे भी वो स्टेप्स के ऊपर वो होता है ना, एक चेयर यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ऐसे सब वो सब शेल होते हैं। सब शेल इज प्रेजेंट इन द शेल, और शेल का ही एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी मोर। इसे हम क्या कहेंगे, सब शेल। सब शेल जितना ज्यादा ऑर्बिट होगा उतना ज्यादा वो एरिया आपको मिलेगा, बराबर है। ये ए एन इज इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर तो एक ही एरिया हो गया। यहाँ पे चलो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर भी एक ऐसा एरिया होगा, यहाँ पर भी होगा। जितनी ये शेल की साइज बढ़ी उसके अंदर उतने ही सब शेल आएंगे, बराबर है। सब शेल के लिए हम इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर कर रहे हैं। और सब शेल is the three-dimensional space around the nucleus which is present in the shell belongs to shell in which the finding probability of finding an electron is very very more, that is up to 99%। उसे क्या बोलेंगे हम, सब शेल। शेल के अंदर का ही एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहता है। हम थोड़े इलेक्ट्रॉन है वो एक्स के पास रहते हैं, अमुक जेड के पास रहते हैं, अमुक वाई के सामने रहते हैं, ऐसा वो सब ऐसा रीजन उसको हम क्या बोलेंगे, सब शेल। तो शेल के अंदर के ही ये सब शेल आ रहा हुआ है और उसका वो जो पर्टिकुलर रीजन है उसे हम बोलेंगे सब शेल, बराबर है। और सब शेल का भी अमुक टाइप होता है, उस टाइप को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। सब शेल बोलो ऑर्बिटल बोलो एक ही है, ऑर्बिटल। पहले तो मैं ऐसे आपको बताता हूँ, ये चलो n इज इक्वल टू 1 है। ये अलग अलग ऑर्बिटल हमको स्टडी करनी है, कौन कौन सी वाली, एस पी डी एफ, ये सब ऑर्बिटल्स और सब शेल के नेम है, एस पी डी एफ। देन कंटिन्यू इन ऑर्डर, जी एच आई ऐसे। हमारे लिए ये पहले वाला चार बहुत इंपॉर्टेंट है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ये नाम हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में से डिराइव किए हुए हैं। इसे शार्प बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल, इसे डिफ्यूज, इसे फंडामेंटल। उसके नाम को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो कोई पूछने वाला भी नहीं है। मैं अब क्या कहने जा रहा हूँ, ये n इज इक्वल टू 1 है तो इसके अंदर एक ही सब शेल आएगी। ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 तो इसके अंदर दो सब शेल आएगी, s और p। साइज बढ़ा तो एरिया भी बढ़ जाएगा। ये n इज इक्वल टू 3 है, चलो तो इसके अंदर कौन कौन सी मिलेगी, s भी मिलेगी, p भी मिलेगी और d भी मिलेगी। कंटिन्यू वी आर एडिंग वन ऑर्बिटल, बराबर है। एक एक ऑर्बिटल हम जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पे ले लो n इज इक्वल टू 4, तो कितने मिलेंगे बोलो, s भी मिलेगा, p d f। यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 होता तो s p d f g h एंड सो ऑन। क्लियर। तो जितना भी n का वैल्यू रहेगा उतना ही उसके अंदर सब शेल मिलेगा। यहाँ देखो n इज इक्वल टू 1 तो एक ही सब शेल है,
n इज इक्वल टू 2 तो 2 मिला, n इज इक्वल टू 3 तो तुम्हें 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स प्राप्त हुए हैं। 4 है तो 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास मान लो कि n इज इक्वल टू n है, तो इसके अंदर कितना मिलेगा, n इज इक्वल टू n सब शेल। तो ये जो n की वैल्यू है वो आपको क्या दिखाती है, नंबर ऑफ सब शेल ऑल्सो, बराबर है, नंबर ऑफ सब शेल ऑल्सो ये दिखाता है। चलो तो कितने सब शेल मिलेंगे, एक और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, नंबर ऑफ, इट ऑल्सो डिनोट्स नंबर ऑफ सब शेल, और सब शेल कितने रहेंगे, n। सब शेल की जो टाइप है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। चलो टोटल ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स रहेंगे n स्क्वायर, अभी ये सिखाने वाला हूं मैं। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n स्क्वायर। इसका हम एक टेबल भी बनाने जा रहे हैं। ओके, ये भी हम सीखते हैं। अभी ये ऑर्बिटल्स कितने हैं उसको छोड़ दो, वो बाद में एक और टेबल में बनाने वाला हूँ, जस्ट सी। चलो यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, ये है मेरे पास ऑर्बिट, यहाँ पे है शेल, यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल्स, और लास्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स। शेल को किसे डिनोट करते हैं, n से। टोटल ऑर्बिटल्स कितनी मिलेगी, n स्क्वायर। सब शेल नहीं, ऑर्बिटल्स, अभी मैं ये पढ़ाने वाला हूँ ऑर्बिटल्स क्या है वो, और अभी तो आप सिर्फ नंबर सीखे। और इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, 2n स्क्वायर। मानो कि मेरे पास ये फर्स्ट शेल है, तो क्या बोलेंगे, k ऑर्बिट, इसे ऑर्बिट कहो, ऑर्बिटल नहीं ऑर्बिट, k ऑर्बिट। शेल कितना होगा, n इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही तो होगा। और इससे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करो, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। n is equal to 1 can accommodate maximum 2 electrons only। 2 से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा तो नहीं, मैक्सिमम 2। तो कैपेसिटी ऑफ द शेल इज 2n स्क्वायर। चलो इसके बाद में ये n इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, ये तो था n इज इक्वल टू 1, अब ये n इज इक्वल टू 2, इसे क्या बोलेंगे, l। तो ऑर्बिट तो हो गई l, एनर्जी लेयर हुआ 2, इसका स्क्वायर करो 4। इसके अंदर 4 अलग अलग ऐसे रीजियन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बराबर है। इसका स्क्वायर किया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 इलेक्ट्रॉन। सो इट हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड बट ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर फॉरबिडन, वो नहीं पॉसिबल है। चलो इसके बाद क्या आएगा, m, m के लिए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3, इसका स्क्वायर करो 9। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 3 आप ले ले तो इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो उसके बाद यहाँ पे आएगा n, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 तो क्या आएगा 16, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, आप बनाएंगे O के लिए, P के लिए n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 6 के लिए भी आप बना देना। आप अब अपनी तरीके से बनाओ, ओके। तो एक बेसिक सा मैंने आइडिया दिया कि शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी मुझे ये सिखाना है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वो क्या है। एक के बाद एक हम ऑर्बिटल्स लर्न करने जा रहे हैं। ऑर्बिटल एस पी डी एफ वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑर्बिटल्स जो है, अब ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इसे हम देखना चाहते हैं। ऑर्बिटल्स कौन कौन सी वाली है, बोलो, एस पी डी एंड एफ। हमारे लिए तो ये 4 ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, क्या बोलो, इट इज 3 डायमेंशनल एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 99%। बराबर है। 3 डायमेंशनल स्पेस, 3D एरिया around the nucleus where
probability of finding an electron is up to 99%। इस एरिया को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। ये अलग अलग तरीके से एरियाज होते हैं, ये इसका शेप वगैरह हम सब देखने वाले हैं। मानो के ऐसा ऐसा आप सोचो, यहाँ पे न्यूक्लियस, चलो ये n इज इक्वल टू 1 है और ये n इज इक्वल टू 2 है, तो ऐसा बन सकता है n इज इक्वल टू 2 के अंदर यहाँ पे ही सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मिले, यहाँ पर ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मिले, दूसरा सभी खाली है, दूसरा सभी खाली है। n इज इक्वल टू 2 पूरा खाली है, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, एक नीचे इलेक्ट्रॉन है। तो किस तरीके से दिखता है? ऐसे दिखता है, देखो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है उसे हम एक लाइन के अंदर n क्लोज कर देते हैं। These are the possibility of electron, and why we are taking possibility or probability of the electron? Because probability is term used because of electrons wave nature। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर रिवील होता है। ये आप सब क्वांटम मैकेनिक्स में सीखने वाले हो चैप्टर में। पर आप इधर तो यहाँ ये एरिया देखो, मानो के ऊपर है और नीचे है, इसे हम एक लाइन के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो ऐसा दिखता है। एक एरिया ऊपर है और एक एरिया कहाँ पे है? नीचे है। अभी न्यूक्लियस तो बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल न्यूक्लियस, बराबर है। तो ये दोनों जो है ये इसके नजदीक में रहेंगे। इसे मैं जितना बनता है उतना नजदीक ले रहा हूँ, बराबर है। ये मैंने नजदीक ले लिया। चलो अब बीच में से न्यूक्लियस को जाने दो, बीच में से न्यूक्लियस को भूल जाओ, तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे एक ऐसा राउंड, एक ऐसा राउंड, और इन दोनों को आप जोड़ दो ऐसे, तो ये शेप कैसा शेप दिखा आपको? ये शेप हमें दिखता है डम्बेल जैसा। कैसा दिखा? डम्बेल जैसा। तो इसे हम बोलते हैं डम्बेल शेप, और डम्बेल शेप होता है पी ऑर्बिटल का। तो पी ऑर्बिट में जब भी कैसे कभी ऐसा बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का शेप है वो डम्बेल है वो ऑर्बिटल का, तो आप सोच लीजिए कि ये पी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द पी ऑर्बिटल, द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज लाइक डम्बेल। ओके, डम्बेल जैसा दिखता है ये, इसलिए इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। चलो ये डम्बेल कहाँ पे लाई कर रहे हैं? जेड एक्सिस ऊपर पे, तो हम बोलेंगे कि शायद इलेक्ट्रॉन है वो पी जेड के अंदर प्रेजेंट है। ऐसा धीमे धीमे आपको आइडिया आ जाएगा ये सभी क्या हम कहने वाले हैं। अब अभी ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन चलो कैसे प्रेजेंट हो, यहाँ पे ये शेल, ये 1 है, ये 2 है, मैं एक ही शेल ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको आइडिया पूरा आए। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे मिले तुम्हें, थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिले, यहाँ पे मिले, दैट मीन्स इसका मतलब ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहा है, पर वो अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, ऐसा सोचो, बराबर है। आप ऐसा नहीं है कि आप घूमने नहीं जाते, आप घूमने तो जाते हो, पर आप मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हो पूरा दिन? क्लास में। तो वो जो एरिया है वो आपकी ऑर्बिटल हो गई। इस शेप को देखें कि इस शेप में देखो, यहाँ पे एक हमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मिला, एक यहाँ पे क्लाउड मिला, एक यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला। इन चारों को मिला दो, बीच में न्यूक्लियस, तो इसे हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे ऐसे और ऐसे। इसे हम बोलेंगे डबल डम्बेल, बराबर, डबल डम्बेल हम बोल देंगे इसे। तो ये सब जो है वो 3 डायमेंशनल एरिया विच इज प्रेजेंट इन शेल एंड इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऐसा भी हो सकता है देखो कि ये न्यूक्लियस है और वो इलेक्ट्रॉन ने पूरा का पूरा एरिया ही कवर कर लिया, यही सब जगह पर इलेक्ट्रॉन मिलता है, सब जगह पे, यहाँ 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 यहाँ, तो इसे हम बोलते हैं एस ऑर्बिटल। ओके, चलो हम एक एक के बाद एक ऑर्बिटल देखने जा रहे हैं। पहले देखेंगे हम एस ऑर्बिटल। क्लियर है? पहले हम देखने वाले हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है उसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। और ये स्फेरिकल होने से क्या हो जाएगा? नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर, नॉन डायरेक्शनल।
each s orbital can accommodate maximum 2 electrons. ये जो s ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स तक रख सकता है. इसका शेप स्फेरिकल है. It starts from n is equal to 1 and present in all successive energy levels. एक n is equal to 1 से स्टार्ट होकर सभी के अंदर प्रेजेंट है, सभी के n is equal to 2 में भी प्रेजेंट है, 3 में भी प्रेजेंट है, सभी के अंदर. तो ये स्टार्ट्स फ्रॉम n is equal to 1, पहले से ही शुरू हो जाता है ये 1 2 3 4. चलो ये n is equal to 1, n is equal to 2 3 4. यहाँ पर भी s है, यहाँ में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है. तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट देम? कैसे हम इसको अलग करेंगे? ये 1 शेल के अंदर जो रहा है उसको बोलेंगे 1s, 2 के अंदर जो रहती है उसे 2s, 3 के अंदर है उसे 3s, 4 के अंदर है उसे 4s. मानो कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 है तो इसके अंदर का क्या नाम रहेगा? ns. बराबर है. स्टार्ट्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, स्फेरिकल है, नॉन डायरेक्शनल है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं. जब ये सभी ऑर्बिटल खत्म हो जाए तब आप मुझसे क्वेश्चन करना. अभी आप ये सब पढ़ते जाइए, 2 लेक्चर में ये जब ऑर्बिटल खत्म हो जाएगा फिर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये क्या एक्चुअली में ये क्या हो रहा है. बराबर है. दिस इज राइट नाउ मे बी इट इज इंफॉर्मेशन टू यू. अभी आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन हो सकता है पर धीमे धीमे इसके अंदर लॉजिक डेवलप होगा. तो पहले तो तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा. अच्छा, इसका शेप स्फेरिकल है तो हमें क्या समझना है? ऐसे समझना है. देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं. ये सब प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन है. ये सब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. ऐसी प्रोबेबिलिटी तुम्हें देखनी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मैक्सिमम मिल जाए. ये प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे. पर तुम्हें क्या दिखना है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दिखनी है. मैक्सिमम. ओके, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यू हैव टू सी. सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है और वो सबसे ज्यादा जो मिलता है उसमें से एक ऐसी लाइन खींच लो. तो ये हो गया स्फेरिकल शेप और इसे कहते हैं एस ऑर्बिटल. दिस इज नोन एज एस ऑर्बिटल. ये 1s जो है वो n इज इक्वल टू 1 में रहेगा तो ये छोटा होगा, इसे 1s कहते हैं. 2s इससे बढ़िया होगा, इसे 2s कहते हैं. अच्छा, 3s इससे भी बड़ा होगा. और ये एस ऑर्बिटल का खास बात क्या है? एस ऑर्बिटल का खास बात यह है कि पूरा शेल कवर करता है. देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी तो दूर भी कहीं हो सकती है क्योंकि सम इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे तो वो कभी कभी कभार न्यूक्लियस से थोड़े दूर भी खिसकते जाएंगे. आपकी सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी 12 बजे कहाँ है? क्लासरूम में. पर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप कहीं रखड़ने चले जाओ बाहर, ક્યાંક રખડવા ભાગી જાઓ બાર તો શું થાય? બાર એ પોસિબિલિટી મળે ને, એની જેવું છે. અમુક ઇલેક્ટ્રોન રખડું હોય તો એ બાર ભાગી જતા હશે. બરાબર છે. એવું પણ પોસિબલ છે. सपोज करिए कि आप घर में है तो घर में तो आपकी मैक्सिमम मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है? आपके बेडरूम में. पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप आंगन में भी हो, बराबर, टेरेस में भी हो. पॉसिबिलिटी है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की ये जो लाइन हमने खींची है उसे हम बोलेंगे ऑर्बिटल. फर्स्ट शेल के अंदर है तो 1s, सेकंड के अंदर है तो 2s, 3 के अंदर है तो 3s. बट एज एन इंक्रीजेस साइज इंक्रीजेस, उसकी साइज बढ़ती जाएगी. बराबर है. तो एस ऑर्बिटल सभी एनर्जी लेयर्स में प्रेजेंट है. कंसेक्यूटिव ऑल एनर्जी लेयर्स के अंदर ये होता है. बराबर है. सभी के अंदर ये होना चाहिए. ये सभी के अंदर फॉलोड बाय ऑल, सभी के अंदर मिलेगा. तो स्टार्टिंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 एंड देन प्रेजेंट इन ऑल एनर्जी लेयर. तो ये s ऑर्बिटल की इतनी बात हमने लिखी है. बराबर है. ये बात किसके लिए लिखी भी हमने? s. p ऑर्बिटल के लिए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखने वाले हैं. ये ऑर्बिटल का ये फाउंडेशन पूरा हो तब तक आपको ऐसा नहीं कहना है कि मुझे वो नहीं पता, मुझे वो नहीं पता. एक बार ये सब पूरा हो जाए फिर आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो नहीं आया. अभी आप सिर्फ सीखे. बराबर है. राइट नाउ यू पीपल विल जस्ट लर्न. ओके, अभी आप सिर्फ सीखे.
ये पूरा होगा ऑर्बिटल वाला, फिर आप मुझे क्वेश्चन करेंगे कि मुझे इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, ऐसा क्लियर है। अभी नेक्स्ट लेक्चर हमें पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के ऊपर लेना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आपके वहां भी वो फैकल्टी होगी, उसको आप मिलिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जिन लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया है उसे तो वो सिर्फ आइडिया रहेगा ही, तो उन लोगों को तो वो आइडिया है, बराबर है। बाकी आप सीधे मुझे भी डाउट सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ, 8866138784। इसके ऊपर डायरेक्टली भी आप डाउट सेंड कर सकते हैं, तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। चलो आज के क्लास में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पी ऑर्बिटल के ऊपर जाएंगे। और ये सब कंप्लीट होगा फिर मैं आपको एमसीक्यू की तगड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा। पर पहले आप एक पूरा स्ट्रेंथ बना लीजिए, प्लिंथ बना लीजिए। हाँ, मकान बनाना है तो पहले हम क्या करते हैं, वो फाउंडेशन करते हैं, जिससे हमारा मकान बहुत स्ट्रॉन्ग टिक सके। तो दिस इज फाउंडेशन फॉर अस। विदाउट दिस यू विल नो हाउ टू लर्न केमिस्ट्री। ये नहीं आएगा तो आप नहीं जानोगे कि केमिस्ट्री को कैसे सीखते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, इतना रख देते हैं। ओके, थैंक यू।